A very good morning to all you students. Once again we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy, chapter number 7, that is accounting for share capital issue and forfeiture. You know very well, in the last few videos we discussed the important theoretical part related to the chapter number 7. In this chapter we already discussed the difference between reserve capital and capital reserve. Number 2, the difference between the authorized capital and issued capital. And number 3, issue of share. You know very well there are basically three ways by which company issued its share. The number 1, issue of share for cash through the private placement. Number 2, issue of share to the public. And number 3, issue of share for a consideration other than cash. In the last video we also discussed what is a private placement of the share and what is a sweat equity share. You know very well, sweat equity share means the equity share issued by the company to its employees, director at a discount or for the consideration other than cash, that not less than 1 year, and such share cannot be sold by the holder for a period of 3 years. As well as we discussed the important plan, that is ESOP, Employee Stock Option Plan. Employee Stock Option Plan is an option given to the directors, officers, employees, company or of its holding and subsidiary company the benefits or right to purchase or to subscribe for the share of the company at a future date at a predetermined price. Today we will move to the numerical part of this chapter, that is the issue of share. You know very well, when we issue the share to the public for cash and for other than cash. So basically accounting treatment is depend on the when we issue the share to the public or any other person for cash or other than cash. So how we will record these transactions in our books? Let's discuss it. So first of all, we understand the theoretical concept related to the issue of share to the public for cash, and thereafter we discuss the important rules related to the issue of share, that is a minimum subscription. As well as in today's video we discussed the entries on issue of the share for cash. When we issue the share for cash, what journal entries will be passed in our books of account, we discussed in this video. We will discuss in this video. So without creating any delay, let's move to the today's topic, that is a issue of share to the public. So you can see on your screen the picture, that is public issue of share or issue of share to the public. A public company can raise its capital by issue share or debenture to the public. The following are the steps to be taken by the public company for issue of share. It means जब भी कोई public company अपना शेयर इशू करती है पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसके कई स्टेप्स होते हैं. एंड द स्टेप्स इज द नंबर 1 टू इशू प्रोस्पेक्टस, number 2 to receive application, number 3 to make allotment, and number 4 to make calls. So let's discuss one by one these steps, how public company issued its share to the public for subscription. So you can see on your whiteboard, a public company can issue by following 4 steps. The step number 1, to issue a prospectus. Firstly, company issue the prospectus. Number 2, to receive application. It means जब वो prospectus issue करती है तो जो कंपनीज के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी पे करते हैं. टू रिसीव एप्लीकेशन. नंबर 3, एप्लीकेशन के बाद कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट करती है. यानी शेयर जिनसे एप्लीकेशन आती है उसमें जिन लोगों से
जिनको शेयर देना है तो उनको शेयर अलॉट करती है। एंड नंबर 4, आफ्टर द अलॉटमेंट कंपनी क्या करती है? टू मेक कॉल्स। सो वन बाय वन वी understand the concept, the issue of share by the public company, how public company can issue the share to the public for subscription, and what journal entry should be passed on the step of the issue of share. Today we will discuss it. So one by one we study the theoretical parts of this chapter, that is the issue of share. Number 1, to issue prospectus. Prospectus the general public to make offer for the purchase of the share in the company. It must be beside the other information, disclose the number, types and amount of share. It should be also include the amount which is payable along with the application, allotment and cost. It means कंपनी क्या करती है? सबसे पहले शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी की एक रिलेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस इंफॉर्मेशन में कंपनी क्या करती है? वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है, टाइप्स ऑफ द शेयर की वो शेयर इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है, और यू नो वेरी वेल देयर आर वेरियस काइंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर वी आल्सो डिस्कस्ड इन द which are already discussed in the class 11, that is a redeemable preference share, irredeemable preference share, convertible preference share, inconvertible preference share, as well as the various kind of the preference share. So कंपनी क्या करती है? जब भी prospectus इशू करती है तो पहले अपनी important information अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। उस इंफॉर्मेशन में द नंबर 1 नंबर, टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ शेयर डिस्क्लोज करती है, और ऑल्सो ये अमाउंट डिसाइड करती है कि वो जो पूरा अमाउंट ऑफ द शेयर है, जैसे 100 रुपये शेयर का है, यू कैन सी दैट कि सपोज शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो कंपनी उस 100 रुपीज़ को एक साथ रिसीव नहीं करती। कंपनी उस शेयर की वैल्यू को क्या करती है? 1 बाय 1 कॉल्ड अप करती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। जैसे पहले एप्लीकेशन मांग लिया, फिर अलॉटमेंट मांग लिया, फिर कॉल्स कर लिया, यानी कि आप स्टेप्स देख रहे होगे ऑन योर बोर्ड, तो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो पहले एप्लीकेशन मांगती है कि कौन कौन इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो जो लोग इन्वेस्टर्स खरीदना चाहते हैं वो क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी पहले पे करते हैं। एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद कंपनी क्या करती है? उनको शेयर अलॉट करना है कि नहीं करना है, इट इज़ डिपेंड ऑन द कंपनी। कंपनी क्या करती है? उनको शेयर अलॉट करती है, फिर अलॉटमेंट के लिए भी कुछ पैसा लेती है। आफ्टर द अलॉटमेंट कंपनी क्या करती है? कॉल्स में पूरा पैसा मांगती है। कॉल्स भी कई टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वॉट एवर। Next paragraph, the prospectus of the company must contain the following information: name and address of the registered office of the company, name and address of the director of the company, objects of the company, risk involved in the issue, consent from Security and Exchange Board of India, SEBI से कंसेंट मिला होता है कि यस ये कंपनी क्या कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है। Authorized and issue capital of the company, कंपनी का authorized capital क्या है, उसकी issued capital क्या है। It means in short way we can say that कि वो कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। एज वेल एज वो ये भी बताती है कि सब्सक्रिप्शन के लिए क्या ऑफर है, क्या टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, द डेट ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू भी शेयर करती है। द सेकेंड स्टेप टू रिसीव एप्लीकेशन, यानी प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद कंपनी क्या करती है? एप्लीकेशन रिसीव करती है। एप्लीकेशन रिसीव करने का मतलब है the indenting have to apply the prescribed form before the last date, specify the number of share they would be like to buy. Each application must accompany the application's money, which can be not less than the 25% of the nominal value of the share. 25% of the nominal value of share. The application money must be deposited by the applicant in the scheduled bank. The company cannot withdraw this amount unless the certificate of commencement of business is received. देखिए मैं कुछ बातें आपको यहाँ शॉर्ट आउट कर देता हूँ। कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, लोगों को इन्फॉर्म किया कि हमारी कंपनी इतना शेयर इशू कर रही है, इस पर्पस के लिए इशू कर रही है, हमारी कंपनी का नाम ये है, ये बिजनेस करती है। फिर लोगों ने उस प्रोस्पेक्टस को स्टडी किया, उनको लगता है कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो कंपनी को शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। एप्लीकेशन के साथ साथ एक नॉमिनल वैल्यू भी होगी जो कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि आपको शेयर को परचेस करने के लिए कम से कम कितना एप्लीकेशन मनी देना होगा। यानी यहाँ एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं कि आपको कंपनी का शेयर मिल जाता है, बट कि रिसीव एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपने शेयर को परचेस करने के लिए कंपनी को ऑफर रखा है कि यू वांट टू परचेस सच काइंड ऑफ द शेयर। सो आफ्टर द एप्लीकेशन, और इसमें कुछ बातें ये भी हैं द इम्पोर्टेंट फैक्ट कि
कि एप्लीकेशन मनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ से 25% से कम नहीं होगी। यानी कि सपोज अगर कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है, तो कंपनी कम से कम 25%, दैट इज 25 रुपीज़ ऑफ ईच शेयर एप्लीकेशन पे उसे मांगना पड़ेगा। और वो पैसा कंपनी को जब पे करेगी तो कंपनी को मिलेगा नहीं, कंपनी को तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार की तरफ से कमेंसमेंट बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। ये भी मैं बात बता दूं आपको क्लियर, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि द कंपनी कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट अनलेस द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिसीव्ड। यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी केस में आपको इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी में जब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बट फॉर द पब्लिक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो करना पड़ता है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए तो कम से कम 9,000 शेयर उसके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। यानी जब उसके 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे तो उसे कमेंसमेंट बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यानी एप्लीकेशन ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि कंपनी को उस साल कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिसीव होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो उस साल बिजनेस नहीं कर पाएगी, नेक्स्ट ईयर फिर उसे ट्राई करना पड़ेगा। अगर 90% ऑफ शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो कंपनी उस साल बिजनेस कर सकती है। सो इट इज़ वेरी इजी एंड कॉमन टॉपिक। सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि रिसीव एप्लीकेशन क्या है। रिसीव एप्लीकेशन मतलब प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर कंपनी के शेयर को परचेस करने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, और एप्लीकेशन मनी कम से कम 25% ऑफ द शेयर से नहीं होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर्स जो हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर एक शेड्यूल बैंक में सबमिट करते हैं। वो पैसा कंपनी को तब तक नहीं मिलता, पब्लिक कंपनी को, जब तक कि उनको कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हो जाता। बेसिकली यही बात है। द नेक्स्ट वन इज to make allotment. After receiving the application, the director takes a step to allot the share within the prescribed time in consultation with the SEBI, Security and Exchange Board of India. Allotment of share means acceptance of the offer of the applicant for the purchase of share. Director have discretionary power either to reject or accept partially these application. ये बहुत easy concept है। allotment का मतलब क्या है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया 10,000 शेयर इशू करने के लिए, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो एंड आफ्टर डेट कंपनी शेयर्स को अलॉट कर सकती है। शेयर अलॉट करने का मतलब ये है कि शेयर सोल्ड कर देना, यानी कि जो इन्वेस्टर ने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन किया है, ही वांट टू परचेस सच काइंड ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, सो इन दिस सिचुएशन कंपनी उन शेयर को अलॉट कर दे। अलॉट करने का मतलब है कि कंपनी उनको शेयर अलॉट कर देती है और उसके लिए भी कुछ अलॉटमेंट मनी चार्ज करती है। नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक कॉल। मेक कॉल के से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज बिफोर discussing about the to make call, first of all I want to explain the what is minimum subscription. It is a very important topic for you because of you know very well, कभी भी कोई पब्लिक कंपनी तब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट रिसीव नहीं कर सकती जब तक कि उसके को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव ना हो जाए। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर कंपनी मस्ट बी रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है, लेट्स वी डिस्कस इट। According to section 39(1) of the Companies Act 2013, the director of the company cannot allot share unless minimum subscription has been received by the company. You can see that कंपनी अपने शेयर को अलॉट नहीं कर सकती जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हो जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स द अमाउंट विच इन द ओपिनियंस ऑफ द डायरेक्टर इज द मिनिमम टू बी रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर सो एज टू प्रोवाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये अमाउंट डायरेक्टर अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फॉर द पेमेंट ऑफ द परचेस प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज एंड एग्री टू बी परचेज। इट मीन्स अगर उसको कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या खरीद चुकी है उसकी वैल्यू, फॉर द पेमेंट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सच एज अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन शेयर, यानी वो पैसा ऐसा हो कि आप अपना अंडरराइटिंग कमीशन फुलफिल कर सको, ब्रोकरेज पे कर सको, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड फ्रॉम द कंपनी फॉर द एबव पर्पस, या आपने इन दोनों पर्पस के लिए बैंक से लोन लिया है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट है, एंड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड फॉर एनी अदर पर्पस। तो इन सबको मिलाकर कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन
of SEBI, minimum subscription has been fixed at 90% of the issue. ये बेसिकली लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि सेबी ने गाइडलाइन किया है कि 90% ऑफ द इशू तो होना ही चाहिए, उससे कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। इफ अ कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर एंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न विद इन द 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। याद रखिए ये चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपनी ने आज शेयर इशू किया, सपोज आज डेट है, सपोज क्या आज डेट है 10 जुलाई, सपोज कंपनी ने आज इशू किया 10 जुलाई को एक शेयर इशू कर दिया। अब वो 30 डेज जैसे 10 अगस्त या 9 अगस्त को कंपनी अपना एप्लीकेशन चेक करेगी कि कितना एप्लीकेशन आया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया था, 9,000 शेयर सब्सक्राइब हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कंपनी को उसके आगे के 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ एनी डिले द कंपनी शैल बी लाइबल टू रीपे द इंटरेस्ट विद एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर द डिलेड पीरियड। और कंपनी अगर उसमें डिले करती है, 15 दिन से 16 दिन होता है, 16 से 17 दिन होता है, तो जितना दिन बढ़ता रहेगा उतने दिन के हिसाब से उसे 15% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेसिक और कॉमन टॉपिक है। So please learn it and underline these term in your copy. पहली बात, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट रिकवरेबल, जिसको क्यों हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करना चाहते हैं इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 में क्लियर है। और सेबी ने गाइडलाइन ये कि कम से कम 90% ऑफ द इशू का शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। डेज कितना है? 30 डेज। नहीं हो पाता है तो विद इन 15 डेज के अंदर सारा पैसा एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर उसमें भी डिले आता है तो फिर आप पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, दैट इज द 15% पर एनम फॉर द डिलेड पीरियड। डिलेड पीरियड के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इजी एंड वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू मेक अलॉटमेंट, टू मेक कॉल्स। यानी कि पहले क्या था? प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके बाद क्या किया? लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई में क्या होना चाहिए? 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा होगा। व्हेन कंपनी अचीव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देयर आफ्टर कंपनी अलाउड टू allot its share to the shareholder. If company fails to collect the minimum subscription amount from the shareholder, so in this situation company return all the application money within a 15 days of the issue. And if company makes any delay, the company shall liable to repay with interest at the rate of 15% per annum for the delayed period. If he delayed by 1 day, 2 days, 3 days, 1 month, 2 month, on a year, तो उसको उतना ही ज़्यादा उस एप्लीकेशन मनी पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। The fourth step related to make calls, that after the payment of the application and allotment money, you can see on your board कि कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, देयर आफ्टर कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी। एप्लीकेशन में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, और तो उस केस में वो शेयर को अलॉट कर सकती है। अलॉट में भी कुछ अलॉटमेंट मनी वो अपने शेयर होल्डर से रिसीव करेगी। एंड एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। द फोर्थ स्टेप इज टू मेक कॉल, यानी आफ्टर द allotment the share to the shareholder, company make a call. So after the payment of the application allotment money, the balance amount which is due from the shareholder is called the number of the installment known as the first call, second call and so on. यानी कि सपोज कंपनी ने एक शेयर की वैल्यू 100 रखी, उसमें से 25 रुपीज उसने क्या मांग लिया? एप्लीकेशन मांग लिया। 25 रुपीज उसने अलॉटमेंट पे रिसीव कर लिए। रिमेनिंग अमाउंट अभी कितना बचा है? 50। तो कंपनी कैन कॉल द 30 अमाउंट। सपोज कंपनी ने 10 रुपीज की 3 कॉल की, तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। ओके, कंपनी ने कितनी कॉल की? 3 कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। यानी कंपनी कॉल्स में, यानी जो बैलेंस अमाउंट है जो उसे मिलना है, सॉरी 50 रुपीज मिलना था ना, 50 रुपीज, तो 50 रुपीज को वो चाहे तो बेसिकली 2 इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है, 3 इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है। सपोज उसने 2 इंस्टॉलमेंट में बैलेंस अमाउंट को रिक्वायर्ड किया या रिसीव किया। बैलेंस अमाउंट दैट इज 25 एंड 25, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सपोज कंपनी फाइनल कॉल ऐसे भी मांग सकती है, कॉल्स ऐसे भी मांग सकती है 30-20,
कंपनी ऐसे भी कर सकती 50 पूरा पैसा एक साथ एक कॉल में मिल जाए। Call in an installment, generally the first installment will be known as the first call and second installment will be known as the second call and last call will be known as the final call. But the important part, normally a company cannot call more than the 25% of the nominal value of the share in one call. Generally कंपनी क्या कर सकती है, वो nominal value से का 25% से ज़्यादा कॉल में नहीं मांग सकती। Further, there should be an interval of at least 1 month between the two calls. कंपनी को दो कॉल के बीच में कम से कम एक महीने का डिफरेंस रखना होगा। Call must be made strictly in accordance with the provision of the article of association. कंपनी को अपने article of association के provision को follow करना पड़ेगा। Where the total issue size exceeds 250 crore, the amount to be called up either on application or in allotment or on one call shall not be exceed 25% of total quantum of the issue. यानी बेसिकली कहा गया है कि अगर टोटल साइज अगर 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, बेसिकली अगर बात करें कि कंपनी 250 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल अरेंज करना चाहती है, तो इस सिचुएशन में चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो एक कॉल की वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो 250 करोड़ रुपए कंपनी को जुटाने के लिए मिनिमम मैक्सिमम 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल, तो भी 25% से करके 100% पैसे अरेंज हो पाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी बेसिक amount, very basic information related to the issue of the share. So first of all I want to summarize all the things. The company issue of share into the following 4 steps. First step is issue of prospectus, second is step to receive application, number 3 to make allotment, and number 4 to make call. Now we will move to the next topic. In the minimum subscription you can see a very important term is preliminary expenses. So what is preliminary expenses? Let's discuss it. So what is preliminary expenses? Preliminary expenses are those which are necessarily incurred in connection with the formation of the company. It include cost of drafting and printing different document of registration of the company, stamp duty on necessary document and registration fees, stamp duty on authorized capital, cost of drafting, that is printing and issuing prospectus, cost of preliminary books and common seal, fee of accountant of valuer if company is formed to buy an established business, underwriting commission payable. So basically preliminary expenses को हम कह सकते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, यानी जब कंपनी फॉर्मेट होती है, उसका निर्माण होता है, तो सिचुएशन में कंपनी को कई तरह के एक्सपेंस पे करने होते हैं, और सारे एक्सपेंस को मिलाते हैं तो बनता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपनी को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराना हो, ड्राफ्ट करना हो, कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी हो, एथराइज कैपिटल के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करनी हो, प्रोस्पेक्टस क्लियर मेक करने के लिए उसके लिए भी पैसा पे करना हो, और कॉमन बुक्स बनानी हो, जैसे MOA एंड AOA, जो अकाउंटेंट है उसकी फीस हो, underwriting commission हो, such kind of. The next part is as per AS 26, these expenses are to be written off in the year in which they are incurred. According to AS 26, that is accounting standard 26, please note down कि जिस साल भी आप preliminary expenses bear करेंगे उसे उसी साल write off भी करेंगे. They should be written off first from the security premium reserve account. सबसे पहले उसको हम लोग कहाँ से एडजस्ट करेंगे? फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड इन द अब्सेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सेम ईयर इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इन दिस नेगेटिव. ये भी याद रखिएगा आप लोग. बेसिकली अगर हम बात करें कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करने का मतलब क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट्स, इट इज़ अ एक्सपेंस, और जब कंपनी पहले ही साल फॉर्मेट कर रही है तो उस साल तो उसके बाद प्रॉफिट होगा नहीं, लेकिन अगर उसके बाद कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर वो कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करती है तो जो फ़ायदा बन रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है उससे अपना ये एक्सपेंस एडजस्ट कर सकती है. और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो उस केस में आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को लॉस के कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसके बारे में हम लोग जो डिटेलिंग रहे, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम लोगों ने इस चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो डिस्कस कर लिया है.
So now we will move to the numerical part of this chapter. So before ending of this chapter, before ending of today's video, before conclude the today's video, now we will move to the accounting entries on the issue of the share. So now we will move to the journal entries. Okay, so you know very well, first of all, company issue the prospectus, and by the help of the prospectus, the potential investor applied for the purchase of the share. So in this situation, first of all, company receive application. तो फर्स्ट journal entry on the issue of share, ये हम जो journal entry करा रहे हैं वो issue of share से related है. So please, जब भी शेयर इशू होती है तो क्या एंट्री होती है? ठीक, तो नंबर 1, ऑन रिसीव्ड एप्लीकेशन, यानी सबसे पहले कंपनी को क्या मिलता है? एप्लीकेशन मिलता है, एप्लीकेशन मनी. सो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ओके, और ये अमाउंट. नंबर 2, you know share application is the part of the share capital, so the such application money transferred to the share capital. So second entry will be application money transferred to share capital. Okay, so the entry will be share application account debit to share capital. Number 3 is after the application money company makes a call, company makes a allotment, company share allot करती है. तो कंपनी क्या करती है? allotment money ड्यू करती है. allotment ड्यू, जब कंपनी शेयर allotment कॉल करती है तो एंट्री विल बी शेयर allotment account डेबिट टू शेयर कैपिटल. एंड देयर आफ्टर जब अलॉटमेंट मनी मिल जाता है, तो अलॉटमेंट जब मिल जाता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. ये अमाउंट के लिए मैंने क्रॉसवर्ड यूज किया है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एप्लीकेशन मिला तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो तो एंट्री विल बी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. एंड आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंपनी क्या करती है, क्या मांगती है? कंपनी वुड बी रिसीव द कॉल्स मनी. यस, और कॉल्स फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है, एक बार में भी हो सकता है, दो बार में भी हो सकता है. सो द फिफ्थ एंट्री विल बी ऑन कॉल्स. जब कंपनी कॉल्स क्रिएट करती है सो एंट्री विल बी, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये हेडिंग है. तो ऑन कॉल्स पे पहले कॉल्स ड्यू करेगी, कॉल्ड अप करेगी, सो एंट्री विल बी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. एंड जब शेयर कॉल्स रिसीव हो जाएगा, कॉल्स का पैसा मिल जाएगा, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स. और इसमें बेसिकली ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी हो सकता है इसके लिए 2-3 कॉल्स करे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल. सो वी यूज द शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल. यहाँ पे भी शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल. वी यूज शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल. ओके, सो इट इज़ वेरी बेसिक जर्नल एंट्री. यू नो वेरी वेल कि हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन मिलता है उसकी एंट्री करते हैं, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, एंड देयर आफ्टर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, फिर अलॉटमेंट रिसीव करते हैं. अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद हम कॉल्स की पैसा मांगते हैं, कॉल्स पहले ड्यू करते हैं, फिर उसको रिसीव करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी बेसिक एंड जर्नल एंट्री यू कैन सी ऑन इन द वाइट बोर्ड. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर बुक, नोट डाउन इन योर कॉपी. इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो बिफोर द क्लोजिंग ऑफ टुडेज वीडियो, I want to express myself कि we entered into the numerical section of this chapter. So please clear all the doubts, please clear all the terms and learn all the terms related to this chapter. Because अगर आपको कोई भी terms नहीं अच्छे से याद होगा, नहीं अच्छे समझ में आया होगा, तो basically आपको numerical question solve करने में
दिक्कतें आएंगी। सो वंस अगेन जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इसको और भी अच्छे और बहुत ही डीप तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो आई होप टुडे वी क्लियर ऑल द टॉपिक्स like public issue of share to the public, the 4 step to issue prospectus, to receive application, to make allotment, to make a call, the 4 steps. And we also discuss in this chapter what is minimum subscription as well as the issue of share, journal entries on the issue of the share. So I hope today we cleared all the topic.